Three times, do not worry, do not worry, do not worry. चिंता मत करो, चिंता मत करो, चिंता मत करो। तेरे नाम के जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े महंगा मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु तू बड़े और मैं घटूं। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले।
यीशु नाम में भलाई, यीशु नाम में सच्चाई, यीशु नाम में रिहाई, यीशु नाम में भलाई, यीशु नाम में सच्चाई, यीशु नाम में सच्चाई, यीशु नाम में रिहाई। तू बड़े मैं घटूं, तेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। मेरा है मैं तेरा हूँ, मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। मैं खुदा हूँ मेरे खुदा, तेरा जीवन तेरा खुदा है। खुदा मेरे खुदा, तेरा जीवन तेरा खुदा। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु saved a wretch like me. I was once lost, but now was blind, but now I see. Just grace that taught my heart. My faith how precious is the grace of
my first belief. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like you love, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. The sun shall see His all Christ. The sun forbear to shine. My God, who calls me here, will be forever mine. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like you love, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like you love, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. Unending love, amazing grace. Unending love, amazing grace. Unending love, amazing. Hi everyone, praise the Lord. I hope you're doing good. I just want to greet you in the name of Jesus. प्रेज द लॉर्ड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यीशु मसीह में ठीक कर रहे हैं। Today we're going to continue on in Matthew chapter 6, but we're going to skip a few verses and get to verses 25 to 33. और आज हम मत्ते का 6वां अध्याय करेंगे, लेकिन हम कुछ वचन नहीं पढ़ेंगे। उसके आगे का जो वचन है वो हम पढ़ेंगे, जो है वचन 23 से। And whatever we skip today, we will go back to it next week. और जो कुछ भी हमने आज मत्ते का जो 6वां अध्याय में जो नहीं पढ़ा है वो हम अगले हफ्ते पढ़ेंगे। You know, we are all facing a situation that we probably never faced in our lives or never heard before. आप जानते होंगे कि बहुत बार ऐसा होता है हमारे साथ कि ऐसा कोई परिस्थिति आ जाता है हमारे जीवन में जो पहले कभी नहीं आया है और वो पहली बार आया है। And this is the coronavirus pandemic situation. जैसे कि उदाहरण के तौर पे जो कोरोना वायरस जो आया है वो पहली बार आया है। Everyone is worried, everyone is scared, a lot of fears everywhere, you know. सब लोग बहुत चिंता कर रहे हैं, डर गए हैं और सब जगह पे एक डर आ गया है। And people are worried about
what's going to happen to them. और लोग यही चिंता कर रहे हैं कि उनके साथ अब क्या होने वाला है। So let's meditate on what Jesus taught and और आज हम ध्यान करेंगे कि जो परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें सिखाया, and learn from it and be encouraged from it. और हम उससे सीखेंगे और उससे हम जो है प्रेरित होंगे। So turn with me to Matthew chapter 6 verses 25 to 33. तो आज आप मेरे साथ जो है मत्ती का 6वां अध्याय में 25 से 33 तक हम पढ़ेंगे। So let me read it in English as my wife reads in Hindi. Follow along. और मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा और जो मेरी बीवी है वो हिंदी में पढ़ेगी। आप उनके साथ पढ़िए। Therefore I say to you, do not worry about your life, what will you eat or what you will drink. Not about your body, what you will put on. Is not life more than food and the body more than clothing? Look at the birds of the air, for they neither sow nor reap nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Which of you by worrying can add 1 cubit to his stature? इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे तो न बोते हैं, न काटते हैं, और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं हो? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? Interesting, isn't it? This portion really talks about our situation today. और ये बहुत ही आश्चर्यजनक है कि ये जो वचन है वो हमारे जीवन के बारे में, जो अभी परिस्थिति चल रही है उसके बारे में बता रहा है। Jesus says, don't worry about what you will eat or what you will drink or what you will wear. यीशु मसीह यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इसका चिंता मत करो कि तुम क्या खाने वाले हो, क्या पीने वाले हो, या तुम क्या पहनने वाले हो। Because all of these things are the matters of our body, the physical, the material things. क्योंकि ये सारी जो चीज़ है वो हमारे शरीर को लेकर है, जो हमें हर रोज जरूरत पड़ती है। And it is not about the spiritual needs here. लेकिन ये आत्मिक जरूरत के बारे में नहीं बता रहा है। The physical does exist. हाँ जरूर, जो भी शारीरिक जो रूप में हमें जो चाहिए वो तो है। And the needs of the physical body is important too. और हमारे जो भी शरीर की जो जरूरत है वो भी महत्वपूर्ण है। And God does care for our physical needs. और परमेश्वर जरूर हमारे जो भी शारीरिक जरूरत है उनको पूरा करते हैं। It's like a child who has a father doesn't have to worry what they're going to wear, what they're going to eat, what's going to be on the table, what they're going to drink. They just wake up and they think about playing and enjoying whatever is available in their house. Their entire world is that house, what the father has provided for the child. उदाहरण के तौर पे एक पिता और अपने उसके जो बच्चे हैं उसके बच्चे को किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उसको मालूम है कि उसके पिता ने उसे घर दिया है, खाना दिया है, पीना दिया है। उसे किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस उसे यही देखना है कि उसे बस खेलना होता है, अपने बारे में रहता है, लेकिन उसका पिता जो है उसका पूरा देखभाल करता है। Isn't that true? We as parents take care of our children so well. And imagine how many of our children are worried when you talk about kids, newborn babies. They all trust the parents and they're so dependent on the father. That's exactly how we should be depending upon our father. और जो छोटे बच्चे हैं उसे किसी बात की चिंता नहीं होती है, वो पूरा भरोसा अपने पिता के ऊपर करता है, ये सोच के कि उसका पिता उसको सब कुछ देगा, उसकी हर एक जरूरत को वो पूरा करेगा। See, though we are not going to study the previous portions, if you see very clearly, the previous portion talks about the temporary things and the eternal things. हमने जो 6वां अध्याय का जो उसके पहले वाला जो भाग है उसमें सब जो है जो चीज़ टेम्पररी है उसके बारे में बताया गया है, और जो अनंत काल तक रहने वाला है उसके बारे में बताया गया है, और उसके बारे में आज हम नहीं पढ़ेंगे। And therefore is what the word that Jesus uses here when he starts this portion. Therefore, I say to you, do not worry. और अगर हम ये वचन को अगर हम स्टार्ट करते हैं 25वां वचन में, वहाँ पे ऐसा लिखा गया है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना। Are you worried? क्या आप चिंता कर Are रहे you हो? worried about your future? क्या आप आपके भविष्य को लेकर चिंता Are you worried कर रहे about your children? Are you worried about your marriage? Are you worried about your family, your food, clothing, savings, house?
या तो फिर आप आपके शादी को लेकर या काम को लेकर या घर को लेकर अपने बच्चों को लेकर आप चिंता कर रहे हो। Jesus wants you to turn towards the birds, the grass, and the lilies and understand how they survive and who is providing for them. परमेश्वर यीशु मसीह चाहते हैं कि आप पक्षियों को देखें, ये फूलों को देखें, यहाँ पे जो घास है उसे देखें। Here he says, look at the birds of the air, for they neither sow nor reap. They are not like men. They are not like us, where we have to sow seed, raise up the crop and do a harvest and then take up food. That's not the place where they are. They're completely depending upon God, and they're not of greater value than us. That's what the Bible says. That's what Jesus says. और यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम आकाश के पक्षियों को देखो, उनको आके यहाँ पे मेहनत नहीं करना होता है, उन्हें यहाँ पे बीज नहीं बोना होता है, उन्हें खेती बाड़ी नहीं करनी होती है, जो भी खाना उनको होता है वो उनको मिल जाता है, वो ले लेते हैं। तो परमेश्वर यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारा जो जीवन है वो पक्षियों से भी ज्यादा मूल्य है, ये बाइबल में कहा गया है। And who is providing for them? और ये पक्षियों को कौन दे रहा है? Who's caring for them? उनका ख्याल कौन रख रहा है? For sure, God, our Father. हाँ, जरूर, परमेश्वर पिता। Jesus has given the answer here. Yet your heavenly Father feeds. Your heavenly Father feeds them. और यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। हमारा स्वर्गीय पिता, my heavenly Father. हमारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। Isn't it interesting that we're all worried about our future, but our heavenly Father is providing for all these birds and the things of the earth so much that He can surely take care of us. But when we take our eyes away from Him providing everything around us, we are worried. It's foolish. ये आश्चर्यजनक की बात है कि मेरा परमेश्वर पिता जो इस पक्षियों का ख्याल रख रहा है, क्या वो मेरा ख्याल नहीं रखेगा? बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा नज़र हम परमेश्वर से दूर कर देते हैं और हम चिंता करने लगते हैं हमारे भविष्य को लेकर। तो ये बहुत मूर्ख की बात है, क्योंकि जो परमेश्वर हमें सब कुछ दे सकता है, हमें उनके पास जाना है। Which of you by worrying, verse 27, can add 1 cubit to his stature? और यहाँ पे 27 में लिखा है, तुम में कौन है जो चिंता करके अपने आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? None of us can. हम में से कोई नहीं कर If you're going to try to do those things, it's only going to affect us. अगर हमने ये करने की कोशिश भी की तो इससे हमें ही नुकसान होगा। So why do you worry about clothing, verse 28? और 28 में लिखा है कि और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? Consider the lilies of the field, how they grow, they neither toil nor spin, and yet I say to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Now if God so clothes the grass of the field, which today is and tomorrow is thrown into the oven, will He not much more clothe you, O you of little faith? और उसके आगे लिखा है कि जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो परिश्रम करते ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसे वस्त्र पहनता है, तो अल्पविश्वासियों तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा? You see, understand this very clearly. Most of us are not even considering God's provision even in our own life, leave alone the grass and so many other things. Today you have breath in your nostrils, it's because God has provided you health, God has provided you life, God has provided you air, oxygen for you to live. और हम फिर भी परमेश्वर का ध्यान न रखते हुए हम यही सोचते रहते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है। परमेश्वर ने हमें श्वास दिया है, ये श्वास के द्वारा हम श्वास ले सकते, ये श्वास के द्वारा हमें जीवन दिया है परमेश्वर ने। You know, it is so easy for us to just look around the world and get worried about the things that we do not have and think about man's standards and assume that we don't have enough for ourselves, so we may not be able to face our future and get worried about things. बहुत बार ऐसा होता है, हम दुनिया की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि उसके पास सब कुछ है और मेरे पास नहीं है, लेकिन हमें वो सारे चीज़ों की चिंता नहीं करनी चाहिए। If God so clothes the grass is so timid, so soft, God is able to provide them a clothing. You see, the grass has a green color, it is so fresh, it is refreshed, it is taken care very well. When you see grass everywhere around here, you just feel refreshed. जब आप घास को देखते हो, घास को देखकर आपको ताजगी महसूस होती है, इतना ताजगी होता है घास में। And it is
it is arrayed in such a way that Solomon, in all his riches, with all his wisdom, was not able to be in so much of glory and refreshment, I would say. और यहाँ पे ये परमेश्वर कह रहे हैं कि सुलेमान भी इतना ज्ञानी होकर भी उसके पास बुद्धि था, लेकिन फिर भी जो घास में जो ताजगी थी उतना ताजगी उसमें भी नहीं था. So in this scripture portion from 25 to 33, we see 3 times, do not worry, do not worry, do not worry. और यहाँ पे ये जो वचन में 3 बार ऐसा कहा गया है कि चिंता मत करो, चिंता मत करो, चिंता मत करो. So can you tell yourself that? तो क्या ये अपने आप से आप कहोगे Do not worry. कि आप चिंता मत करो, Do not worry. चिंता मत करो, Do not worry. चिंता मत करो. This is what Jesus is telling you today. और यही यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं. I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, do not worry, God will provide you. आप चिंता मत करो, क्योंकि परमेश्वर हमें हमारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे. परमेश्वर आपको सब कुछ देगा. God will provide you everything. और परमेश्वर आपको सब कुछ देंगे. What are you worried about? आप किसके बारे में चिंता कर रहे हैं? Take this time to just give it to God. ये समय आप ले ले और ये समय आप परमेश्वर के हाथ में सौंपें. Are you getting half of your salary? क्या आपको आधा पगार मिल रहा है? Have you lost your job? या तो फिर आपका काम छूट गया है? Have you lost your health? या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है? Is your business not running? या आपका बिजनेस अच्छा नहीं कर Is your रहा? support getting cut down? या तो फिर आपको जो सपोर्ट मिल रहा है वो भी कम हो गया Are you है? losing the place of your ministry? या तो फिर जो सेवकाई आप कर रहे हैं वो जगह आपने खो दिया Are है? you not able to pay the premium or the EMIs for your loans? या तो फिर आपका जो भी कर्जा है उसका आप कर्जा चुका नहीं पा रहे हो? Are you losing your vehicles and your properties? या तो फिर आप आपके गाड़ियों को खो रहे हो, या प्रॉपर्टी जो भी है उसको आपने खोया है? I want to tell you, तो मैं आपको बताना do चाहता not worry. हूँ, आप चिंता ना करें, God will provide you. क्योंकि परमेश्वर आपको देंगे. May the Lord speak to you today, this morning. और परमेश्वर आज सुबह आपसे बात करें. I pray that the Spirit of God reveals how much God is taking care of you so well now, till now, and how much He is capable of taking care of you for the future. मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा आपको बताए कि इतना परमेश्वर ने आपका देखभाल किया है, वो आपको समझ आए और आगे भी आपका भविष्य को परमेश्वर संभालेगा, ये समझ आप में आए. Verse 31. और 31 का वचन, Therefore do not worry, saying, what shall we eat, what shall we drink, and what shall we wear? For after all these things the Gentiles seek. For your heavenly Father knows that you need all these things. इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है. One of the names of God is Jehovah Jireh. और हमारा परमेश्वर का एक नाम यहोवा जायरे है. Means Jehovah will provide. इसका मतलब ये है कि यहोवा हमें जरूर देंगे. In impossible times, और ऐसे समय पे जहाँ पे सब कुछ नामुमकिन आपको लगे, in a time when you're thinking that everything that hoped for is going to be lost, और ऐसे समय पे जहाँ पे आपने सब आशा बनाए रखी थी और आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ आप गंवाने वाले हैं, उस समय परमेश्वर आपको देंगे. see, there is a distinction here between the children of God and the Gentiles. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 लोगों के बारे में बताया गया है, एक है परमेश्वर के बच्चे और अन्य जाति. So Gentiles may worry, saying, who will provide? अन्य जाति के लोग जो है वो ये बोलते होंगे कि हमको कौन देगा. That's when the children of God should say, God will. और तभी परमेश्वर के बच्चों को ये कहना है कि परमेश्वर देंगे. Let me put this into your heart, मैं ये आपके दिल में डालना चाहता or हूँ, maybe in your mind. या तो फिर आपके मन में डालना चाहता हूँ. These kind of worries about food, shelter, clothing are referred here or considered to be the worries of the Gentiles, the ones who don't have a father, the ones who have not chosen to follow God, the ones who don't have an understanding of God's care. और Are you? यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं ऐसे जो लोग, जो अन्य जाति के लोग हैं, वो लोग ही जो है खाने के बारे में, पीने के बारे में, रहने के बारे में या कपड़े के बारे में सोचते हैं. So, are you not more valuable? Are you not a child of God? Are you not someone who has a family where the Father who can provide everything in this world to provide for you? क्या आप मूल्यवान नहीं हो? आप परमेश्वर के नज़र में मूल्यवान हो, इसलिए परमेश्वर पिता आपको वो सब कुछ देना चाहते हैं. See, many times we worry when we don't have a value for ourselves, or we have value attached for us based on the material things that we own or have or possess.
बहुत बार ऐसा होता है कि हम मूल्यवान अपने आप को मूल्यवान नहीं समझते और इसलिए जो आजू बाजू में जो भी मूल्य है उसको लेकर हम अपने से जोड़ते हैं. It's interesting, when you go out, you see the beauty of this world, the trees, the plants, the flowers, the grass, the meadows, the sea, the ocean, the mountains, the hills. We feel so in awe. We come, to a place where we say, wonderful Lord, awesome God. And then we go and see our own face in the mirror. We say, oh, God, why did you put this nose on my face like this? Why are my eyes like this? Why am I like this? बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को नहीं देखते लेकिन हमारे आगे जो कुछ भी हमको दिखाई देता है, जैसे कि ये पेड़ हो, ये आकाश हो, ये सब कुछ जो भी हमारे सामने दिखाई देता है उसके बारे में हम सोचते हैं और बोलते हैं कि ये कितना सुंदर है. लेकिन जब हम खुद एक आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि अरे हम बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, परमेश्वर तूने हमारे नाक को ऐसा क्यों बनाया. ये हम सोच के हम जो है हमें अच्छा नहीं लगता. So we always, worry about, our value based upon the material things we possess. But God does see us and value us as who we are. और जो है हम बहुत बार ऐसा होता है कि शरीर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं और परमेश्वर के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते. And we have the image of God, and that should have more value to us than the image of a rich man or a career man or a lot of property or a big car and things like that. तो हमें परमेश्वर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि ऐसे लोगों को देखना है जो अमीर है या जिसके पास बहुत बड़ा घर है या जिसके पास बहुत बड़ी गाड़ी है. See, Solomon, a man who was so rich and so wise, had a great empire, a dynasty. Still, his life was not so beautiful to look at, or his kingdom was not so full of glory compared to the lilies that are grown in the forest randomly, because they're so decked so well, level to level. Every petal, every detail of that flower is so beautiful. That's exactly what Jesus is saying. और यहाँ पे यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि अगर आप जंगली सोसनों को देखें जो इतना सुंदर है, उसका हर एक पंखड़ियों को अगर आप देखेंगे वो इतना सुंदर है और इतने अच्छे से वो जो सेट हुआ है, अगर हम सुलेमान के जीवन से अगर हम तुलना करेंगे तो सुलेमान जो इतना ज्ञानी था, इतना बुद्धिमान था, लेकिन उसका राज्य जो था वो इतना सुंदर नहीं था जैसे कि ये जंगली सोसनों थे. The word array basically means arrangement, decked up. Or in your terms and my terms, dressed well, basically. और अरे का मतलब ये है कि जो बहुत अच्छी तरीके से उसको कपड़ा पहनाया गया है, जैसे कि फूलों को अगर हम देखते हैं जिस तरीके से उनका पंखड़ियाँ है, जो ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत सुंदर वस्त्र पहने हैं वैसा. Birds, lilies, grass, common things we just see every day in our life. जो पक्षियाँ है, जो जंगली सोसनों है या घास है, ये हम हर रोज देखते हैं. उसको देखकर परमेश्वर हमें बोल रहे हैं. See, birds are cared by God. God provides them food to eat. Birds have to eat. Grass doesn't have to. Flowers don't have to. Okay, maybe there are other ways they eat, but the birds have to eat food like you and me. अगर हम देखेंगे जो पक्षियाँ हैं उनको खाने की ज़रूरत होती है, जैसे आपको और हमको खाने की ज़रूरत है. And these birds do work for their food. They search for food. Even the ants go around search for food. They store, or maybe they don't store, but they just are able to eat. और जो पक्षियों का अगर हम देखेंगे तो वो लोग भी यहाँ वहाँ जाते हैं, खाना ढूंढते हैं और खाते हैं. जैसे कि जो छोटी सी चींटी है वो भी खाने के लिए बाहर जाती है और वो खाने को जमा करके रखती है. In fact, let me say just about the birds. अगर हम यहाँ पे सिर्फ पक्षियों के बारे में बोलें, they go everywhere searching for food. वो लोग सब जगह यहाँ वहाँ जाते हैं खाने की. They don't sow, they don't harvest, but they get food. God provides for them, right? वो लोग बीज नहीं बोते, ना ही वो वहाँ पे काम करते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर उन्हें देते हैं. Remember this in your heart today. ये आप आपके दिल में रखें. If God is providing for that bird, God will provide for you as His child. अगर परमेश्वर उस पक्षी को खाना दे सकता है तो परमेश्वर आपको भी खाना दे सकते हैं, जबकि आप परमेश्वर के बच्चे हैं. But the question is, are you willing to work? लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आप काम करने के लिए तैयार हो? Because many people think God is going to provide me and they don't want to work. बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि हाँ परमेश्वर मुझे देगा इसलिए मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, काम करने की जरूरत नहीं है. So please be aware that the birds work and you work and God will provide for you.
तो आप ये समझिए कि जैसे पक्षियाँ जो है वो भी काम करते हैं, वो मेहनत करके जो है खाने को वो लोग इकट्ठा करते हैं, वैसे ही आपको भी मेहनत करना है और परमेश्वर ज़रूर आपको देंगे। And your physical needs, your physical things will all be provided by God. और आपकी जो भी शारीरिक ज़रूरत है वो सब कुछ परमेश्वर आपको देंगे। Don't worry. इसके लिए आप चिंता ना See, करें। often people want to save so much, work so much, have so much, and they work so much that it harms them. बहुत बार ऐसा होता है कि लोग जो है वो इतना काम करते, काम करने के इतने आदीन हो जाते हैं कि काम के कारण उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। And some people want to care for their bodies so much that they go into n number of dieting, n number of workouts, they just stress their bodies so much. I recently heard about an actress who just died because of a particular diet that she followed, you know. और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बस अपने शरीर के पीछे लगे रहते हैं, अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, उसके लिए वो डाइटिंग करते, ये खाना खाते, वो खाना नहीं खाते। और मैंने रिसेंटली अभी जो है एक एक्ट्रेस है जो अभी गुजर गई है और वो डाइट कंट्रोल की वजह से वो गुजर गई। Worrying is useless. और चिंता करना जो है उससे आपका कुछ नहीं होगा। It can add nothing except pain. चिंता करने से बस आपको और ज़्यादा दर्द होगा। See, worrying can harm us. चिंता करने से आपको ही मुश्किल होगा। Worrying is useless. चिंता करने से कुछ नहीं होगा। You can add nothing but just pain by worrying. चिंता करने से बस आपको और ज़्यादा जो है दर्द होगा। And working too much is also gonna hurt you, and worrying too much is also gonna hurt you. ज़्यादा काम करने से भी आपको नुकसान होगा और ज़्यादा चिंता करके भी आपको नुकसान होगा। You know, people who worry a lot are stressed a lot, and they may get diseases, they have poor health, you know what I mean? जो लोग बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं तो अगर आप उनको देखेंगे उनका शरीर सही नहीं रहता और उनको बहुत सारी बीमारियां होती हैं। In fact, a lot of terminal illnesses are even connected to stress, like, you know, even for the simplest of dandruff, simplest of hair fall, even to heart attacks, you know, a lot of things are connected to stress and worrying. तनाव करने के कारण जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जैसे डैंड्रफ होना या बालों का गिरना, ये सारी चीज़ें होती है। And I want you to know that God cares for you so much that He doesn't want you to worry. It shouldn't affect your health. God cares for you. और परमेश्वर आपका चिंता करते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि आप चिंता ना करें क्योंकि वो आपको वो सब देना चाहते हैं। God wants to provide for you. परमेश्वर आपको सब देना चाहते हैं। And I'm not against exercises. I'm not against dieting. I just want to let you know that our life is more than the bodily needs. मैं एक्सरसाइज के खिलाफ नहीं हूँ या तो फिर हमारे शरीर के ऊपर ध्यान देना ऐसा इसके खिलाफ मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हमारे शारीरिक से भी ज़्यादा हमें आत्मिक का ज़्यादा ध्यान देना है। Not just about what you will eat, drink and wear, though they are best essential and basic needs. हमें सिर्फ खाने पीने या रहने का बारे में चिंता नहीं करना है, माना कि वो हमारी ज़रूरत है, वो आवश्यकता है। Jesus calls such people who worry like that as of little faith. और यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा है कि जो लोग सिर्फ वस्तुओं के बारे में चिंता करते हैं उनमें जो विश्वास है वो बहुत कम है। Why? They have no faith in their Father that He is able to provide. ये क्यों? क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं है कि उनके पिता परमेश्वर के ऊपर कि वो उनको सब कुछ देने वाले। They worry like the Gentiles. वो लोग अन्य जाति लोगों की तरह वो चिंता So करते it's not just worshipping God in a wrong way like the Gentiles, it's also worrying and not having the right faith about God and God's provision like the Gentiles is also wrong. और ये नहीं कि अन्य जातियों की तरह हमें आराधना नहीं करना चाहिए, वो भी गलत है, लेकिन उसी के साथ साथ चिंता करना, जो चीज़ हमारी ज़रूरत की चीज़ है जैसे खाना पीना कपड़ा, इसके बारे में भी हमें चिंता नहीं करना चाहिए। अगर हम कर रहे हैं तो वो गलत है। If God can provide us eternal life and send His Son and save us from hell and send us into heaven, won't God take care of us, you know, in this world? जो परमेश्वर हमारी इतना चिंता करते हैं कि उन्होंने अपना एकलौता पुत्र यहाँ पे हमारे लिए भेजा ताकि हम नर्क में न जाए लेकिन अनंत काल का जीवन पाए, वो परमेश्वर क्या हमारे हर रोज की जो चिंताएं हैं, हर रोज की जो जरूरत है उसका ख्याल नहीं रखेंगे? They don't have a father. उनके पास पिता नहीं है। They have no understanding of a God who provides. उनको कोई बात की समझ नहीं है कि परमेश्वर हमें दे सकते हैं। They don't know that God loves them and God cares for them. उनको ये भी नहीं मालूम कि परमेश्वर उनसे प्यार करते हैं और उनकी चिंता करते हैं।
We are not like that. We are not supposed to be like that. और हम उनकी तरह नहीं है और हमें वैसा बनना भी नहीं चाहिए। And I want to tell you, when Jesus is saying all these things, what he's saying is, these are not things you should worry about. That's what he's और saying. यीशु मसीह हमें यह कहते हैं कि ये सारी चीजें जरूरत है, लेकिन इसके बारे में तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। But instead, लेकिन इसके बदले में seek. इसके बदले में तुम सिर्फ खोजो। If you see in verse 33, he says like this, but seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. अगर आप वचन 33 में देखेंगे, उसमें लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। Seek ye first the kingdom of God. सबसे पहले परमेश्वर के राज्य को खोजें। Not just what you will eat and what you will wear. भाई ये मत सोचो कि मैं क्या खाऊंगा या क्या पहनूंगा। And also seek his righteousness. और यहाँ पे परमेश्वर ये भी कह रहे हैं कि उनके धर्म की खोज करो। His character, his way of life. उनका चरित्र, जिस तरीके से उन्होंने जीवन जिया है, उसके पीछे जाओ। You know, I have an incident in my life. I remember, it often happened in my life, and my daughter is very young. You know, I used to have her in my lap, and she always looks at me on my face. You know, she's just looking up to me, and I would be doing all my work, but her eyes were always upon me. You know, and randomly, even if I look at her, she's just having her eyes on me, just staring at me. You know, that incident always is registered in my mind, and I wonder, is that how I see God? Is that how I want to capture the face of God? Is that how I'm paying attention to God's face constantly without any distraction? You know? बहुत बार ऐसा होता है कि जब मेरी बेटी जब छोटी थी तो हमेशा मेरे गोद में आके बैठती थी और हमेशा उसका ध्यान मेरे तरफ होता था, उसकी आंखें हमेशा मेरे चेहरे पर होता था। अगर मैं कुछ काम भी करता तभी भी उसकी आंखें मेरे चेहरे की तरफ होता। तो ये घटना मुझे इतना याद है और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि क्या अगर मैं परमेश्वर के गोदी में अगर मैं बैठा हूँ तो क्या मैं भी परमेश्वर को ऐसे ही देखता हूँ, मेरी आंखों को पूरा टिका कर परमेश्वर के ऊपर क्या मेरी नज़र रहती है? ये मैं हमेशा सोचता हूँ। If you are paying attention to your Father and His face and His provision, you're not going to worry about any of these things, brother and अगर sister. आप आपके परमेश्वर पिता के ऊपर ही ज्यादा ध्यान रखेंगे, मतलब आपकी आंखों की उनके ऊपर ही रखेंगे, तो आपका नज़र आजू बाजू में नहीं जाएगा और आप ये नहीं सोचेंगे कि मुझे क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है। जब आपकी आंख जब परमेश्वर की तरफ होता है तो आपको मालूम होता है कि परमेश्वर आपको सब कुछ वो देंगे। A lot of people try to work so hard and lose their family relationship. और बहुत है कि लोग यहाँ मेहनत करते हैं कि उनका जो रिश्ता अपने परिवार के साथ है वो टूट जाता है, वो खो चुका है। They lose their relationship with God. उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ टूट जाता They है, lose their character. उनका चरित्र जो है वो खो जाता They है, lose their children. उनके बच्चों को वो खो देते हैं। But I don't want you to do that. लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये आप करें। Don't worry. आप चिंता ना करें, Have faith विश्वास करें that your God will provide for you. और आपका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमें सब कुछ देंगे। The life we have is more valuable than food, shelter, and clothing, brother हमारा and जो sister. जीवन जो है वो कपड़ा या खाने पीने से भी ज्यादा मूल्यवान है। See, if you see this whole chapter, there is Jesus referring to a word called reward, reward, reward. He's talking about the hypocrites. He's talking about the Gentiles. He's talking about how people want their reward from this world. You know, that word reward is something I want you to pay attention to. और यहाँ पे यीशु मसीह ने बार बार इनाम के बारे में बताया है कि हम जो है, और यीशु मसीह ने जो है अन्य जातियों के बारे में यहाँ पे बताया है। And we see very clearly, if you think your life is more valuable, you will choose to invest your life for the most valuable things. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जीवन मूल्य है तो आप जो है जो भी मूल्य चीजें हैं उसके ऊपर आप ज्यादा ध्यान And देंगे you will invest it for greater reward. और उसके ऊपर आप ज्यादा ध्यान देंगे, उसके ऊपर आप जो है सब कुछ डालेंगे ताकि आपको उससे जो है फायदा मिल सके या मुनाफा And मिल you will focus on those things that are eternal and not just temporal. और आप जो है ऐसी चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे जो अनंत काल तक है, जो आपके साथ रहेगा, ना कि जो टेम्पररी चीजें हैं जो आज आएगी और कल जाएगी। So all these things, the physical, the emotional, the mental, you know, everything, even a stress-free life can be provided by God. और ये हमारी जो भी ज़रूरत है, चाहे वो भावनात्मक हो या तो फिर आत्मिक हो या तो फिर जो भी शारीरिक जो भी ज़रूरत है, वो सब कुछ परमेश्वर पूरा If करेगा। you see God, His kingdom and His ways, then you will have a stress-free life.
अगर आप सिर्फ परमेश्वर के ऊपर आपका ध्यान देंगे और उनके राज्य के अगर आप खोज करेंगे तो आपका जीवन में चिंता बिल्कुल नहीं रहेगा। आपका जीवन जो है तनाव से मुक्त वाला जीवन I want to होगा। tell you, all these things that you're worried about will be given to you by God, and God will give it to you in so much, in increase, that you'll be content and you don't have to worry about it. और जो कुछ भी चीज़ के बारे में आप चिंता कर रहे हो, अगर आपने वो सब कुछ अगर अपना ध्यान अपने परमेश्वर में लगाया तो आपका जो भी चिंताएं है वो परमेश्वर देखेगा, आपकी जो भी ज़रूरत है वो परमेश्वर देखेगा और आपका जीवन जो है वो तनाव से मुक्त रहेगा। So if you see here, seek God and His ways. और यहाँ पे ये कहा है कि परमेश्वर के पीछे चलो और उसके Rasta. उनके रास्ता के पीछे चलो। Seek God and His ways. परमेश्वर के पीछे चलो और उनके रास्ते के पीछे चलो। Learn them and live by them. उनसे सीखो और वैसा ही अपना जीवन जियो। So make a choice. तो आपको अभी एक जो है आपको चॉइस करना है, And एक निर्णय लेना है. एक निर्णय लेना है That you will stop worrying. कि अभी से आप चिंता करना छोड़ देंगे। You will stop worrying and you will focus on God and His kingdom, the most valuable, which is your eternal life. और अभी से आप चिंता करना छोड़ देंगे और आपका जो ध्यान है आप अभी से परमेश्वर के ऊपर रखेंगे, उनके राज्य के ऊपर रखेंगे। And you will focus on the eternal purposes of your life. और आप वही जो अनंत काल का जो जीवन है और जो भी उद्देश्य है उसके ऊपर आप ध्यान देंगे। And these things won't matter to you then. और ये सारा चीज फिर उसके बाद आपको मायने नहीं So रखेगा। then what matters? तो क्या मायने रखेगा? Eternal life. अनंत काल का जीवन, The kingdom of God. परमेश्वर का राज्य, God is my provider. क्योंकि परमेश्वर मुझे सब कुछ देंगे। The Lord is my shepherd. I have no want. परमेश्वर मेरे गडरिया है और उनके अलावा मुझे और कुछ नहीं My चाहिए। God will provide all my needs according to His riches in Christ Jesus. और यीशु मसीह मेरे सारे ज़रूरतों को पूरा करेंगे जो उनके भंडार से वो मुझे देंगे। So I want to encourage you this morning. तो मैं आपको अभी ये उत्साहित करना चाहता हूँ आज सुबह Don't worry. कि आप चिंता ना करें, God will provide you. कि परमेश्वर आपको सब कुछ देंगे। Whatever that you're worrying about, चाहे कुछ भी हो जाए या चाहे कोई भी चिंता आप give it to God. करें, वो परमेश्वर को आप दे दें Just pray. और प्रार्थना He करें। will take care. प्रार्थना करें और परमेश्वर वो सब कुछ देखेंगे। And replace your worry with interest in the kingdom of God. और चिंता को छोड़ के आप जो है परमेश्वर के राज्य में ज्यादा आप इंटरेस्ट लें। Exactly. All right? May God bless you. और परमेश्वर आपको आशीष दे। I hope this message is an encouragement to you. और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज का मैसेज से आप उत्साहित हुए हैं। Let's pray. और हम प्रार्थना करेंगे। Father, thank you very much for your love and your care. परमेश्वर पिता आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आपके प्यार के लिए और आपका ख्याल के लिए। Forgive me for worrying about everything, Lord. मुझे माफ करो कि मैंने हमेशा हर चीज़ का चिंता किया है। Forgive me for living a faithless life and a life without faith in you and your provision. मुझे माफ़ कर परमेश्वर के बहुत बार मैंने विश्वास वाला जीवन नहीं जिया है लेकिन बस चिंता करते रहा हूँ। I was worried about the ministry, about my family, about my children, about the food, the shelter, the clothing. मैं Indeed. हमेशा चिंता करता रहा हूँ मेरे परिवार को लेकर, मेरे बच्चों को लेकर, मेरे खाने को लेकर, मेरे सेवकाई को लेकर। From the beginning you have provided me. लेकिन शुरुआत से तूने मुझे सब कुछ दिया है। Forgive us for not paying attention to your provision. मुझे माफ़ कर, हमें माफ़ कर के आपने जो भी हमको दिया है उसके ऊपर हमने ध्यान नहीं Lord, you're दिया। providing everything for everyone in this world, और आपने अब तक सब लोगों को सब कुछ दिया है, उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा किया है, including me. मुझे भी। And as your child, और मैं आपका बेटा होने के नाते you have more value for me and you consider me important. कि आपने मुझे ज़्यादा मूल्य दिया है और आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है। And my needs are visible in your sight and you know what I need. और मेरी जो भी ज़रूरत है वो सब कुछ तुझे मालूम है और तूने सब कुछ पूरा किया है। Thank you. उसके लिए And I धन्यवाद। trust you for all the needs I have today and in the future, believing that you will take care of me. और मैं ये भी भरोसा करता हूँ कि जो भी मेरी ज़रूरत अभी है या आने वाला जो भी ज़रूरत है भविष्य में उसको भी तू देखेगा और मुझे सब कुछ जो है Lord, मुझे you देगा। are a God who can provide even the last minute, last second. आप ऐसे परमेश्वर हो जो लास्ट मिनट में, लास्ट सेकंड में भी आप देते हो। You're the God of Abraham who said the Lord will provide. और आप
अब्राहम के परमेश्वर हो, जिसने आपने उनको कहा कि सब कुछ आप उन्हें देने वाले हैं। So Lord, we trust you. तो परमेश्वर, हम आपके ऊपर भरोसा I करते trust हैं। you for all my needs. हाँ, मेरे सारे ज़रूरतों को मैं आपके ऊपर I भरोसा trust you करता for हूँ। all my family needs. मेरे जो भी परिवार की जो भी ज़रूरत है, मैं उसके लिए भी आप पर भरोसा I करता trust हूँ। you for all my ministry needs. और मेरी जो भी सेवकाई है, उसके ऊपर भी मैं आप पर भरोसा करता हूँ। Help me, Lord. मेरी मदद कर। And I pray for all my brothers and sisters who are part of this right now. और मैं सारे मेरे भाइयों बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो अभी इसमें भागी बने हैं, Lord, help them to have faith in you. और उनकी मदद कर भी आपके ऊपर ऐसे ही विश्वास कर सकें। You speak to them, help them, and fulfill their needs. आप उनसे बात करें, आप उनकी मदद करें और उनकी हर एक ज़रूरतों को पूरा करें। In Jesus' name we pray. ये हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। But I want to tell you something. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। If you are a pastor or if you are in ministry, अगर आप पास्टर हो या तो फिर आप सेवकाई कर रहे if you are हैं, a brother or sister who is interested in stepping into ministry, या फिर आप भाई बहन हो जो सेवकाई करना चाहते हो, I believe the Lord has something for you. मैं ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आपके लिए कुछ रखा है। Remember this. The name of our Lord is also Jehovah Jireh. ये याद रखो कि हमारे परमेश्वर का नाम है यहोवा जायरा, He will provide. और वो ज़रूर आपको देंगे। Every need of yours you know, and things you will face in the future which you don't know of. और जो कुछ भी आपको मालूम है या जो कुछ भी आपको नहीं मालूम है और जो कुछ भी आपके जीवन में आने वाला है, वो सब कुछ परमेश्वर जानते हैं, And He will provide for you. और वो आपको सब कुछ देंगे। Don't worry. तो इसलिए आप चिंता ना करें, God will provide you. परमेश्वर ज़रूर आपको देंगे। The Lord will provide you. परमेश्वर ज़रूर आपको देंगे। Jehovah Jireh will provide you. यहोवा जायरे आपको सब कुछ देंगे। Don't worry. आप चिंता ना करें, But show interest in the kingdom of God. लेकिन परमेश्वर के राज्य में आप इंटरेस्ट दिखाएं। All right? God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे, Thank you for joining us. और धन्यवाद कि आपने हमें ज्वाइन किया। Lead you, and guide you, and bless you. परमेश्वर आपको आगे बढ़ाए और आपको आशीर्वाद दे। Thank you. धन्यवाद।
हेलो, प्रेज द लॉर्ड। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा जो मैसेज है वो पसंद आया है और आप इससे आशीर्वादित हुए हैं। अगर आप इससे आशीर्वादित हुए हैं तो प्लीज हमारे जो चैनल है सिंपली बाइबल उसे सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे लोगों को आप प्लीज ये वीडियो शेयर कीजिए। अगर चाहे तो फेसबुक में भी इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।